welcome back to Narayana Group of Educational Institutions. As you all know that we are running a one short video series. And with that regard, this is the third episode of that series wherein I have brought you a chapter called the acid, bases and salt. This is the second chapter of grade 10. So without wasting any time guys, let's get started. So as you all know what acid are. Acid are the substances that are sour in taste and they'll change blue litmus to red, right? What can be the probable example? Yes, we can have lemon, vinegar, amla, citrus fruits, etc. Now let's talk about bases. What are bases? Bases are the substances that are soapy in touch and bitter in taste. And what do they do on litmus paper? They change the litmus color, that is red litmus, to blue. What can be the probable example? Soap, baking soda, etc. Now we all know what acids and bases are. On the basis of taste and texture, we can classify or distinguish between an acid and a base, right? But students, do you know that some acids and bases can be corrosive in nature? Like here you see we have sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid. All these acids are very corrosive. In a similar way, we have certain bases like sodium hydroxide, which is also corrosive in nature and it will be very dangerous if you touch it with your bare hand. So in that case, what do we need? Can we keep the same definition that acids are sour in taste? Acids are the substances that are sour in taste. No, we need to level up our understanding of acids and bases. So that is why I am here to level up your existing knowledge about acids, bases and salt. And in this video, that is in today's class, we are going to discuss what are acids, the Arrhenius definition, what are bases, their physical and chemical properties. Then we'll also discuss what is salt and some examples of salt. So without wasting any time guys, let's get started. So as per the Arrhenius theory, Arrhenius ने क्या बताया भाई कि acids are the substances, acid ऐसा substance होता है जिसको आपने जब पानी में dissolve किया तो फिर वो क्या दे रहा है? Acid हमें hydrogen ions दे रहा है. What is hydrogen ion? Hydrogen ion is nothing but the H plus ion. Right? So let's take an example of an acid, that is hydrochloric acid. Hydrochloric acid का formula क्या हुआ? HCl. Why have we written AQ here? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने यहाँ पर AQ क्यों लिखा है. ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसे हम पानी में डाल रहे हैं तो वो आयोनाइज हो रहा है. आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? यानी वो ब्रेक हो रहा है. किस में ब्रेक हो रहा है? एक H प्लस आयन, दैट इज वी आर गेटिंग अ हाइड्रोजन आयन, और हमें क्लोराइड आयन मिल रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स डेफिनेशन. अब एक और एसिड का एग्जांपल लेकर इसे और मजबूत करते हैं इस डेफिनेशन के अंडरस्टैंडिंग को. So let's talk about H2SO4. H2SO4. Now this molecule is nothing but sulfuric acid. So the sulfuric acid molecule, when you have a closer look, you find that there are two hydrogen atoms. So how many hydrogen ions are we going to get? We are getting two hydrogen ion and a sulfate ion. So student, can you understand one thing, that the higher the number of hydrogen atom in the molecule of the acid, the higher the number of hydrogen ion we are going to get when the acid is ionizing in water. और AQ क्यों लिखा है मैंने बगल में, इसे आप comment section में बताओगे. Right? Now, this is all about the acids. Now, do you know that इन acids को हम dilute कैसे करते हैं? देखो, एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड भी रहेंगे और उन्हें हमें डाइल्यूट भी करना है. तो डाइल्यूशन के लिए क्या करना है भाई? मान लो हमारे पास में इसमें एसिड है, ठीक है, अब इस एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू ऐड वाटर. अब ये सोच के बताओ हमें कि ये पानी हम कैसे डालेंगे एसिड में, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करो. एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा? वो पूछेंगे कि व्हाट डू यू ऐड एसिड टू द वाटर और डू यू ऐड वाटर टू द एसिड? तो the thing is कि if you add water to the acid, what will happen that this is a highly exothermic reaction. तो जैसे ही आपने वाटर को एसिड में डाला तो the solution might explode and it may be आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है इससे. तो इट विल बी वेरी स्प्लैशिंग एंड देन दिस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विल जस्ट स्प्लैश, एक्सप्लोड भी कर सकता है. तो यू विल नेवर ऐड वाटर टू द एसिड, राइट?
On the contrary, what we should do is that we need to add acid drop by drop using a glass rod. जैसे हमने यहाँ पे ग्लास रॉड लिया है और इसको स्टर करते रहना कंटिन्यूअसली. तो वाटर हमेशा एसिड में जाता है, ना कि एसिड हमेशा वाटर में जाता है, ना कि वाटर टू दी एसिड, राइट. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं? इट्स ऑलवेज वाटर इज हियर एंड देन वी आर एडिंग acid to the water, right? तो acid water के अंदर जा रहा है, right? Now, why do we add acid to the water? This is because water की जो heat capacity होती है, water की जो heat capacity है is very high. तो नाउ बच्चों, अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी वो चीज़ होती है कि मतलब अगर आपके पास में हीट कैपेसिटी है तो अगर कोई भी रिएक्शन से अगर वो एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रहा है, तो वो हीट को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो. तो वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता है उस हीट को एब्जॉर्ब करने की. तो जब एसिड हमने डाला वाटर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर भी हुआ, बट वो एक ड्रॉप एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास ढेर सारा पानी है, राइट. तो वो एसिड का जो भी हीट है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है वाटर के द्वारा. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम वाटर को एसिड में डाल रहे हैं तो फिर वो चीज़ नहीं हो रहा है. एक बूंद वाटर है यहाँ पर और इतना सारा एसिड है, तो भाई एसिड तो पता ही है वो कोरोसिव होता है एंड इट मे लीड टू एक्सप्लोजन. सो हाउ डू यू डाइल्यूट एसिड? यू ऑलवेज एड एसिड टू द वाटर, करेक्ट. ना अब हम बेसिस की बात करते हैं कि हाउ हैज Arrhenius डिफाइंड बेसिस. So Arrhenius said that whenever we dissolve the base in water, उसका जो aqueous solution होगा, that solution is always going to give us the hydroxide, जिसे हम hydroxyl भी बोलते हैं, that is hydroxide or hydroxyl ion. What is this hydroxyl ion? OH minus, right? So what are bases? Bases are the substances which when dissolved in water are going to give us OH minus ion. Let's have a look at some example. तो हमारे पास example है सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमारा प्यारा सा बेस है. इस बेस में हमने क्या किया, हमने इसको पानी में डाला, तो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग द सोडियम आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन. ऑल्सो वी हैव टेकन KOH. व्हाट इज इट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट्स गिविंग अ पोटेशियम आयन and an hydroxide ion. So this is all about the acids and bases. So now we have covered the definition of acids and bases and we have leveled up our knowledge. Now what we are going to do? Now let's talk about कि यार bases versus alkali. This is also a VVI. This is a VVI. एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा, बताओ कि कौन सा बेस है कौन सा अल्कली है. दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस. 2 मार्क का क्वेश्चन में आ जाएगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बेसेस एंड अल्कली. और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि भाई which of the following options are incorrect, and then they'll tell all bases are alkali or alkali are bases. तो चलो पता करते हैं कि भाई क्या है करेक्ट, राइट. सो alkali क्या होते हैं? alkali are the water soluble bases. देखो, bases are the one which are going to release the OH minus ion when we are putting it into water, but that is the Arrhenius definition, right? We may have certain bases that are insoluble in water, so they are just bases, right? बट alkali क्या होगा? जब अगर कोई बेस पानी में डिजोल्व हो जा रहा है, सो दैट इज एन alkali. What will be the example of alkali? Alkalis are sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, etc. All the hydroxide, right? Sodium, potassium and calcium. अब अगर हम बात करें कि यार all alkalis are bases और all bases are alkali, तो अब आप समझो कि bases एक बड़ा सेट है, right? बेसिस इज अ बड़ा सेट इन विच जिसमें वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होंगे वो क्या है हमारे एल्कली, राइट. अब थोड़ा मैथमेटिक्स का दिमाग लगाओ और आप बताओ कि ऑल बेसिस आर एल्कली या ऑल एल्कली आर बेसिस. एल्कली बेस के अंदर आ रहा है ना, राइट. सो मीन्स ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. तो what are the bases which are other than alkali? Bases which are insoluble in water. Bases that are insoluble in water. What are the examples? These examples are very important. इसे examination में याद करके रखना. What are it? Ferric hydroxide, that is FeOH3, and cupric hydroxide, that is CuOH2. So these are the bases that are insoluble in water. Understood? All right. Now let's talk about indicators. Indicator से क्या समझते हैं? ट्रैफिक सिग्नल में जा रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन, राइट.
तो इसी तरीके से इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन हेल्प अस by changing about their properties, by changing in their properties, they will tell us कि whether a substance is an acid or a base. तो if it is changing its color, they are visual indicator, and if they are changing its smell, they are olfactory indicators. तो चलो अब जानते हैं कि what are the various types of indicator. So on the basis of their origin, कि भाई indicator आ कहाँ से रहा है, we have classified the indicators into two types, that are natural indicators and synthetic indicators. तो आओ पढ़ते हैं क्या है natural indicator. तो natural indicators are the indicators. Natural मतलब natural sources से मिल रहे हैं भाई. कहाँ से आ रहे हैं? Plant से आ रहे हैं, कुछ animals या organisms से भी आ जाएंगे. So these are natural indicators. Example हमारा प्यारा सा example litmus. हर जगह litmus आ जाता है. अब ये बताओ कि litmus कहाँ से बनता है? litmus बनता है lichen से. और ये lichen, अब ये जो लिटमस है, अब इसके भी तीन कलर्स होते हैं, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और बेसिक. तो आओ देखते हैं. सो इन न्यूट्रल मीडियम लिटमस इज पर्पल इन कलर, इन एसिडिक मीडियम इट इज रेड इन कलर, व्हाइल इन बेसिक मीडियम इट इज ब्लू इन कलर. So this is all about the natural indicator. Let's see some more example of natural indicator. We have turmeric, we have red cabbage. अब बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताओ कि टर्मरिक, what is the color of turmeric in a basic medium and acidic medium, right? This is your homework. Now let's move on to the other type of indicator, that is synthetic indicator. Synthetic indicators क्या होते हैं? जिसे हम लैब में बना रहे हैं, right? Now synthetic indicators में क्या आ जाएंगे? We have phenolphthalein and we have methyl orange. These are the common two examples. और बच्चों this is very important. इसकी स्पेलिंग याद रख लो, phenolphthalein. और इसका कलर चेंज क्या होगा बेसिक मीडियम में? Let's have a look here. तो ये जो है ये एक चार्ट है जिसमें मैंने सारे इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं. वी हैव लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, एंड हाउ आर दे चेंजिंग द कलर इन न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. ऑल्सो याद है मैंने पहले ही बताया था कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस जो हम जैसे हम डिफाइन दे चेंज देयर प्रॉपर्टीज, राइट? यानी विजुअल भी हो रहे हैं. अभी हमने देखा कि वो कलर्स चेंज करके बता रहे, तो दीज वर विजुअल इंडिकेटर. अब हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स भी होंगे जो स्मेल में चेंज आएगा, जैसे कि वी हैव ऑलफैक्टरी इंडिकेटर. तो इंडिकेटर जो उसमें कलर में चेंज नहीं आ रहा, जो अपने स्मेल को चेंज कर रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, दे विल गिव अ डिफरेंट ओडर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. What is example? We have vanilla, we have onions, and we have clove oil. ये सारे इंडिकेटर what are they going to do? They will have their smell retained in the acidic medium, but basic medium में इनका smell चला जाता है, right? So this is all about the olfactory indicator. Now you know indicators इतनी बढ़िया चीज़ है कि there are some flowers that cannot resist themselves to show the colors. तो उसी में एक आता है hydrangea macrophylla. तो हाइड्रेंजिया एक ऐसा फ्लावर है जो सॉइल के पीएच चेंज होने पे अलग अलग कलर्स बताता है. तो इफ इन केस द सॉइल इज एसिडिक द फ्लावर विल कम इन ब्लू कलर, एंड इफ द सॉइल इज इन बेसिक मीडियम द फ्लावर विल बी इन पिंक कलर. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि और ऐसे कितने फ्लावर्स और कितनी अलग स्पीशीज है जो सॉइल के पीएच चेंज होने पे या फिर सॉइल के एसिडिक या बेसिक होने पे अपना कलर बदलते हैं. Right? So this is all about the indicators. Now let's talk about the properties of acids. So let's talk about the physical properties. As we have already discussed, they are sour in taste and they turn blue litmus red. Right? Now acids are very much corrosive in nature, and that is the reason why we store them in glass bottle, because the glass and the ceramic bottle do not react with acid, and we never store acids in metal jars, etc. Right? This question can come that why don't we store acids in metal? So you will get the answer. आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि because acids are very corrosive in nature, they'll react with metals, right? अब किस तरीके से metals के साथ react करेंगे, आओ अब देखते हैं. Now we have completed 3 physical properties. अभी कुछ और physical properties देख लेते हैं. Acids are generally solids or liquid, but hydrochloric acid एक ऐसी acid है which is found in the gaseous state as hydrogen fluoride gas, right? और then we have electrolyte. So electrolytic property ये बताती है कि acid कितने अच्छे से electricity conduct कर सकती है. As you all know that acid when we put it into water, जब हम उसका aqueous solution बनाते हैं तो it releases H+ ion, right? तो उस H+ ion और जो भी उसका
contrary ion रहेगा, they are providing the free electrons or the free ions inside the water, because of which we can conduct the electricity. So acids are good electrolyte, right? So क्यों कर रही है electricity? Because it is producing free ions and electrolytes in the molten or the aqueous state. Now this is all about the physical properties. अब बात करते हैं कुछ chemical properties की, right? सबसे पहला है reaction with metal, कि मेटल के साथ में किस तरीके से एसिड्स आर रिएक्टिंग. तो डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स क्या हो गए भाई? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा, टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड व्हिच बर्न्स विद अ पॉप्स आउट. अब देखते हैं. Metal plus dilute acid. Metal plus dilute acid is going to give us metal salt and hydrogen gas. बच्चों, अब जो हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं, दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन करके आएंगे, राइट? एंड देन यू हैव टू राइट द रिएक्शन. तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव. अभी क्या हमने देखा? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज गिविंग अस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. एग्जाम्पल देखते हैं. जिंक विच इज इन सॉलिड स्टेट. स्टेट को मेंशन करना मत भूलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन. आधे मार्क्स उसके लिए भी कट सकते हैं. सो जिंक इज इन सॉलिड स्टेट, एसिड इज इन डाइल्यूट स्टेट, राइट? अब इस क्या मिल रहा है हमें? ZnSO4 मेटल सॉल्ट. तो ये मेटल क्या कर रहा है? बिकॉज दिस मेटल इज वेरी एक्टिव, ये हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से एंड उसके एनायन के साथ में कॉम्पाउंड बना देगा, यानी एक सॉल्ट बन गया हमारे पास में. और वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस. तो हमें क्या मिल रहा है? मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अनदर एग्जाम्पल विल सी. बट यहाँ पे देखो कि ये जो है, ये हाइड्रोजन गैस कैसे पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा. जैसे ही यहाँ पर हमने जिंक ग्रैन्युल्स डाले हुए थे, एसिड डाल रखा था, डिलीवरी ट्यूब से वो जो भी गैस फॉर्म हुआ है, वो गैस यहाँ पर आया. इस दौरान में, इस पूरे पाथ में वो गैस थोड़ा ठंडा हुआ. वी लेट इट कूल डाउन इन द सोप सोल्यूशन. अब सोप सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि वो जैसे ही वो गैस अंदर जा रहा है, तो वो जो भी सोप है, वो सोप के साथ में वो गैस भर करके बाहर आ रहा है, एंड देन सोप इज फॉर्मिंग अ फिल्म अराउंड द गैस. ठीक है. अब इस गैस के सामने हमने एक जलती हुई माचिस की तीली लाई. क्या हुआ? पॉप, ऐसा पॉप सा साउंड आएगा. तो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन गैस बर्न. तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई ये हाइड्रोजन गैस ही निकला है, राइट? सो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि भाई क्या है फीचर हाइड्रोजन गैस का? हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि या ये जो गैस निकला है वो हाइड्रोजन गैस ही है, राइट? नाउ दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? मैग्नीशियम. जब मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? NgCl2 and H2 gas. Remember student, this reaction is not balanced. We have not balanced the reaction. I'm just telling कि भाई end product हमें क्या मिल रहा है, right? Balance करना है. What we have to do? We'll just write 2 here. Now, अब हम बात करते हैं कि भाई मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में एसिड किस तरीके से रिएक्ट करती है. या जब मैं ये बात कर रही हूँ मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट में कार्बोनेट क्या होता है? What is carbonate? Carbonate is CO3 2-. चार्ज क्या है? 2-. वही हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो ऐसा कार्बोनेट जिसमें H+ आयन जुड़ा हुआ है, यानी HCO3-. HCO3-. क्योंकि H+ आ गया तो एक प्लस और एक माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? बस एक माइनस बचा, राइट? नाउ दिस इज मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब देखते हैं भाई रिएक्शन किस तरीके से हो रही है. तो when we talk about the reaction, acids react with metal carbonates or bicarbonates to give what? We are getting salt of that respective metal, carbon dioxide and water. तो जब आप इस कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो कैन यू सी हियर CO3. अब इस CO3 से क्या निकल जाएगा? CO2, राइट? तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी, CO2 पक्का से पक्का निकलेगा. अब देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से हो रही है. हमने लिखा मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव व्हाट? सॉल्ट. कोई भी कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट तो मिल ही रहा है हमें. Water, and we are getting what? We are getting carbon dioxide. Let's see some example. Here you see that we have an example of sodium carbonate reacting with hydrobromic acid. We get NaBr, water and CO2. Again, in which state? Gaseous state. अब let's say we have changed. अब हमारे पास में क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा. अगेन वी हैव केप्ट द सेम एसिड. क्या मिलेगा? NaBr, H2O and CO2. एग्जामिनेशन में रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट 1 शॉट में ज्वाइन करना. मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेने वाली हूँ, ठीक है. नाउ
अब बात करते हैं कि CO2 अगर निकल रहा है तो CO2 को टेस्ट किस तरीके से करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा. तो देखो हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है. नाउ रिएक्ट करेगा, विल गेट अ मेटल सॉल्ट, वाटर, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गया, इस डिलीवरी ट्यूब में हमने लिया. ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया. ठीक है, व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला बताओ मुझे. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट लाइम वाटर. तो जब लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो हमें मिलता है व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. तो क्या होगा कि जैसे ही हमने लाइम वाटर में, यहाँ पे देखो लाइम वाटर में जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो यू मस्ट हैव रेड कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. क्यों मिल्की बन रहा है, क्यों मिल्की बन रहा है, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग calcium carbonate, right? Because of formation of calcium carbonate, the lime water is turning milky. Now, अगर हम इसमें further same reaction में, अभी देखो यहाँ पे lime water में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला. अब अगर इसमें हम सेम चीज है कैल्शियम कार्बोनेट में और हमने बोला कि नहीं और CO2 पास करवाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जिसके कारण बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ CO2 द लाइम वाटर विच हैज टर्न्ड मिल्की वो वापस से ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. राइट, तो जो मिल्कीनेस है वो चेंज हो जाएगी बिकॉज कार्बोनेट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस वॉज योर प्रो टिप. एग्जाम में आ सकता है अगर थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन आएगा तो, कि व्हाट इफ वी पास एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर. राइट नाउ एक छोटा सा टिप है जिसमें कि ये बताने चाह रही हूं मैं कि जो एक्सेल्स हैं हमारे या फिर मार्बल हो गए या चौक हो गए, दे आर ऑल्सो what do they contain? They contain calcium carbonate and hence they will react with acid to form what? CO2 gas, right? So we'll get CO2 gas from them. Now let's talk about the chemical properties of base. की acids की ही chemical properties की बात करें कि भाई bases के साथ कैसे react करेंगे. तो what does acid do? Acid is one pole, base is the other pole. दोनों react करेंगे, क्या होगा? Neutralization. Everybody knows. तो whenever an acid and base react together, we get a neutralization reaction because of which we get a salt and water. Let's see some of the examples. Sodium hydroxide बहुत बड़ा base. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बड़ी एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस. दोनों के बीच में हमने रिएक्शन करवा दिया. व्हाट आर वी गेटिंग? NaCl. क्या है भाई NaCl? एक छोटू सा प्यारा सा सॉल्ट जिसे हम अपने खाने में यूज करते हैं. तो दे व्हाट हैपेंस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि दे लीव देयर ईगो, दे लीव देयर स्ट्रेंथ एंड दे बिकम अ सिंगल कंपाउंड दैट इज हार्मलेस. दिस इज सच अ हार्मफुल गैस. NaOH को आप खाली हाथ से आप उसे छू नहीं सकते हो. सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बहुत ही डेंजरस गैस है. इट इज ऑल्सो वेरी कोरोसिव. आप उसे खाली हाथ से छू नहीं सकते हो, राइट? बट आप NaCl को आराम से उसको खा रहे हो. तो what is happening? They are losing their acidic and basic property, right? Now let's talk about their reaction with metal oxide. कि metal oxide के साथ में कैसे react हो रहा है? तो acids will react with metal oxide to form again metal salt and water, right? Calcium oxide reacting with dilute nitric acid. We have taken nitric acid, calcium nitrate and water we are getting. Again, we have taken copper oxide, HCl, CaCl2 and water, right? Sorry, here it should be Cu. It will be CuCl2, right? तो इस तरीके से reaction with metal oxides is happening. Now, what you see is that when an acid is reacting with a metal oxide, we are getting salt and water. So, what should be the nature of metal oxide? Think. Yes, it shows that metal oxides are basic in nature, right? Metal oxides can be considered an equivalent of base. So, that's why when they are reacting with acid, they are getting salt and water. Now, did you know that acid can show their acidic property only in presence of water? So, acids are how they are showing the acidic property? Because in water they are able to produce the H plus ion. तो अगर water नहीं रहा तो क्या होगा? H plus ion भी produce नहीं होगा. तो acid might not be able to show any acidic property of them. यहाँ से question ऐसे आएगा कि जो HCl gas है, I told that HCl is in gaseous state. तो HCl gas है, it does not have any action on the litmus paper. On the contrary, if you dip HCl solution, that is HCl in aqueous state, वो
लिटमस पेपर में कलर को चेंज कर रहा है. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? सो यहाँ से acids show their acidic behavior only in presence of water, right? Now let's have a look at some of the industrial uses. Hydrochloric acid are used in various places like dyeing stuff, tanning and printing industry. Then we have the other acid, that is sulfuric acid. Sulfuric acid is used in multiple things. You can have a look of all these things, right? We have fertilizers, we have paints, we have dyes, plastics, synthetic fibers, detergents, etc. Since sulfuric acid is used in various places, बहुत जगह यूज होती है, तो sulfuric acid is also called the king of chemicals, right? Now see, ये देखो sulfuric acid ने हमारा प्यारा सा क्राउन पहन रखा है. Now let's talk about nitric acid. Nitric acid कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? TNT बनाने में हमें यूज हो रहा है, डाइज, प्लास्टिक्स, ड्रग्स, etc. right? Then let's talk about acetic acid. Acetic acid is nothing but vinegar. तो acetic acid विनेगर में यूज हो रहा है, जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज करते हैं, राइट? नाउ इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट द बेसिस. सो बेसिस, एज यू ऑल नो, दैट दे आर सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट, एंड लिटमस पेपर में क्या करेगा? रेड लिटमस को इट विल चेंज टू ब्लू. नाउ bases are also equally good electrolyte. Why? Because when we put the bases in water, they ionize and hence conduct electricity, and hence it will be showing the electrolytic property. Now let's talk about the corrosive action. Yes, bases are also very much corrosive in nature, so we need to keep the bases in a container in which bases does not react, like glass. Glass is a very good container because glass does not react with bases. ठीक है? Now let's talk about the chemical properties of bases. तो reaction with acid, कि acid के साथ में react कैसे करेंगे? जैसे acid ने base के साथ react किया था, वैसे base भी acid के साथ react करेगा. That is, it will undergo neutralization reaction. अब neutralization reaction में क्या हो रहा है? Base plus acid, it's giving us salt and water, as we have seen these example. Now metals के साथ में कैसे react करता है? So hydrogen gas will be evolved when bases are reacting with metal. Mind it, bases do not react with all the metal. It will react with some amphoteric metal like aluminium, zinc, right? So the reaction becomes very important. अभी जो मैं reaction दिखाने जा रही हूँ, you need to by heart it. अब चाहे जैसे भी करो, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो. Zinc, sodium hydroxide, ZnO2, NaZnO2, यानी क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट. तो and water. तो भाई अब इसको याद तो कर लोगे, बट याद करने के लिए भी तो आपको समझ में आनी चाहिए ना बात. तो देखो कैसे करना है. यू नो दैट बेस विल रिएक्ट विद अ मेटल टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट एंड व्हाट? हाइड्रोजन. ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बेस से व्हाट? हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे. तो वी हैव हियर Zn, ठीक है? वी हैव Na एंड OH. अब हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को निकाल दिया. ठीक है? हाइड्रोजन को सबट्रैक्ट कर दिया. क्या बच रहा है? हमारे पास जिंक बच रहा है. आई राइट इट हियर. वी आर लेफ्ट विद जिंक, ऑक्सीजन and 2Na, right? इसको थोड़ा रीअरेंज करो. ZnO2, right? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बच रहे थे, तो Na2ZnO2. इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट बना दिया. तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि भाई किस तरीके से रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है. अगर रिएक्शन का हमें ये पता है, रिएक्शन का मेन रिएक्शन या फिर रिएक्शन का स्ट्रक्चर पता है हमें, तो उससे हम रिएक्शन को खुद से भी बना सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला आपको जिंकेट का फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, राइट? सो दैट यू डू द आंसर, यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड देन यू अटेम्प्ट इट विथ एक्यूरेसी. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग लाइक टिन विल आल्सो बी एन एम्फोटेरिक मेटल. तो इसके साथ भी रिएक्ट करके विल गेटिंग सोडियम स्टैनाइड, दैट इज Na2SnO2, राइट? नाउ how are bases reacting with non-metal oxide? हमने देखा था एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन. अब भाई नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कैसा हो रहा है? लेट्स हैव अ लुक. हमारे पास में बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने रख लिया, CO2 इज अ गैस, ठीक है? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट? ऑक्सीजन उसका ऑक्साइड हो गया. तो अब हम व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. सो व्हाट वी सी हियर इज दैट दिस इज आल्सो अ सॉल्ट एंड वाटर. So what can we talk or tell about the non-metallic oxide? That they are acidic in nature, right? Now, अब देखो यहाँ पे same reaction. Now यहाँ पे अब हमने अलग सा बेस लिया, NaOH लिया, we are getting sodium carbonate and water.
Here we are getting sulfur dioxide, that is magnesium hydroxide, sulfur dioxide, and again a salt, Mg2SO3 and water. So what are we understanding? Ki here the bases, these are the bases are reacting with the non-metallic oxides and non-metallic oxides to form salt and water, indicating that non-metallic oxides are acidic in nature, right? Now it's high time to talk about the industrial uses of bases. So the first base that comes to our mind is NaOH. NaOH is used abundantly everywhere. NaOH में क्या क्या मिल रहा है भाई हमें? It is helping us to make synthetic fibers like rayon, petrol refining. It is also helping us to make soap, paper, etc. And remember this thing, that this is known as caustic soda. This is very important. Ki sodium hydroxide, what is the common name of sodium hydroxide? Caustic soda, right? Let's talk about the other base. We have potassium hydroxide. It is used to make alkaline batteries. Potassium hydroxide, K for batteries. तो हमेशा ऐसे याद करके रखो कि K for battery. तो potassium hydroxide is used in batteries के production में, ठीक है? And soft soap वगैरह को भी produce करने में होता है. Also, हमने अभी क्या देखा कि sodium, caustic soda is the common name of sodium hydroxide. What is the common name of potassium hydroxide? It's caustic potash. Soda for sodium, potash for potassium. ठीक है, इस तरीके से याद करके रखना. Now let's talk about the third base, that is calcium hydroxide. अब calcium hydroxide कहाँ यूज हो रहा है भाई? So calcium hydroxide is used in manufacturing bleaching powder, softening of hard water and neutralizing acid in the soil. ठीक है, अगर soil की acidity बढ़ जा रही है तो उसको neutralize करने के लिए क्या यूज करें? Calcium hydroxide, right? Next let's talk about magnesium hydroxide. It is used an antacid. कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना, तो जो एंटासिड टैबलेट्स आते हैं दैट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ लाइफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस एंड स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स, राइट? सो दीज वर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ द बेसिस. नाउ let's talk about the reactivity of acids and bases. So far what we have discussed, that acids and bases are two poles, right? Both of them will neutralize each other, both of them will react with each other to form what? Salt and water. तो क्या हो रहा है कि acids which are producing the H plus ion and bases which are producing the OH minus ion, both of them will react together to form what? Salt and water. अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे reaction actual में हो किसका रहा है. हमेशा याद रखना कि the H plus of acid and the OH minus of base will react together to form what? Salt. Acid की property ये H plus handle कर रहा है, base की property OH minus handle कर रहा है, तो both of them will react together and what are they forming? They are forming water. और जो base का cation है, that is जो metal है base में और जो non-metal है acid में, both of them will combine together to form what? Salt. Right? Now अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस, राइट? हमेशा याद रखना एसिड का काम क्या है? H प्लस आयन रिलीज करना. बेस का काम क्या है? OH माइनस आयन रिलीज करना. तो जितना ज्यादा H प्लस आयन एक एसिड रिलीज करेगा, जितना ज्यादा H प्लस आयन एक एसिड रिलीज करेगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा. यानी कि एसिड विल हैव हायर स्ट्रेंथ विथ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. इन सिमिलर वे when we have bases, अगर मैं बेस की बात करूँ तो higher the number of OH minus ion means higher will be the basic strength of the base. अब इसके साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, that is the pH scale. pH scale. pH scale हमें ये बताएगा कि जो एसिड या बेस है जिसका हम स्ट्रेंथ मेजर करने वाले हैं वो कितना ज़्यादा ताकतवर है. तो अभी हमने देखा क्या कि इंडिकेटर्स हमें ये बता देते थे कि भाई ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है, बट वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है ये हमें नहीं पता चलता था, राइट? सो टू सॉल्व दैट वी हैव पीएच स्केल व्हिच वाज डिस्कवर्ड और व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर सोरेनसन इन द ईयर 1909. तो भाई ये पीएच स्केल है क्या? pH scale which is going to help us to find the strength of an acid or a base, right? So as acidic and basic nature is due to the active H plus ion, right? कि basic nature is because of the OH minus ion while acidic nature is because of the H plus ion. तो
पीएच स्केल की इमेज बनाने के लिए सोरेनसन ने क्या किया कि उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने एक पैरामीटर को लिया H प्लस आयन को, और उन्होंने बोला कि इट इज ए नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन, राइट, कि भाई तुम्हारा H प्लस आयन कितना है सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस कितना H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, अगर मैं उसका नेगेटिव लोगैरिथम निकालूं तो वी विल गेट द पीएच ऑफ दैट सब्सटेंस एंड दैट पीएच इज गोइंग टू टेल अस कि भाई वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। बट इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वर्ड pH ऐसे क्यों लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस वर्ड P मीन एंड व्हाट इज दिस H। दिस वर्ड स्मॉल p refers to potens, POTENZ, right? So potens means what? Power. And H, why does it H come here? H stands for the H plus ion. Because for pH scale जब हम measure करते हैं तो by default we take H plus ion, right? We take it by default as H plus ion. But ऐसा नहीं है कि आप बस H plus ion लोगे, अब आप जब higher grades में जाओगे तो you can also calculate the pH with OH. तो then वो हो जाएगा POH माइनस, तो दैट इज समथिंग अदर केस। अभी हमें pH पर फोकस करना है। क्यों H है? क्योंकि ये हम लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, तो भाई H प्लस आयन में कितना दम है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ pH स्केल। अब देखते हैं ये स्केल किस तरीके का दिखता है। ये देखो pH स्केल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स टिल 14, ठीक है। तो 0 से 14 के स्केल पे हम एसिड्स और बेसिस को रेट करेंगे कि भाई ठीक है तुम इतने हो, अगर तुम 7 से नीचे, अगर इफ यू आर लेसर देन 7 तो तुम एसिड हो, और अगर तुम 0 के पास हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो। जनरली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई जो 0 है वो क्या ही है, बट यहाँ पे 0 ही हीरो है, जिसके पास में 0 का pH है वो दैट विल बी द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 7 या उसके आसपास में रहेंगे दैट विल बी अ न्यूट्रल सब्सटेंस। एंड जैसे जैसे आप हायर स्केल की तरफ बढ़ोगे, यानी कि व्हेन यू गो टिल 14, so the bases which will have 14 का नंबर on the pH scale will be very strong base, right? तो हमने क्या देखा कि जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब आप 14 की तरफ आ रहे हो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, राइट। दिस इज हाउ एन एसिड और बेस बिहेव, राइट। बेस में तो H प्लस आयन रहेगा ही नहीं, यानी OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस, करेक्ट, ठीक है। और H प्लस आयन कहाँ से आ रहा है बेस में, भाई बेस तो तभी ना वो फंक्शन कर पाएगा जब वो वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर में तो H प्लस आयन है ही, राइट। तो pH स्केल कैसा है भाई, when you are near 0 you are the hero, that is you are a very strong acid। धीरे धीरे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, 7 पर आप न्यूट्रल हो जाओगे एकदम शांत, और उसके बाद अब जैसे जैसे आप 7 से आगे जा रहे हो आप माइल्ड बेसिक हो, और फिर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जब आप 14 पर आ रहे हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाते हो, मतलब सब्सटेंस एक बेस बन जाता है, ठीक है ना। So for neutral solution, the concentration of H plus and OH minus ion is equal, hence the pH is 7। अगर concentration of H plus ion ज़्यादा है, जो H plus ion है वो कहाँ पर है, वो इस तरफ में, अगर वो ज़्यादा है OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, तो क्या होगा, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिडिक, यानी pH हो जाएगा लेस देन 7। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है OH माइनस से, ठीक है, हमने बताया ना कि इधर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रही है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन घट रहा है, तो अगर H प्लस आयन कम है OH माइनस से तो क्या हो जाएगा, pH विल बी ग्रेटर देन 7। pH ग्रेटर देन 7 मतलब इट विल बी अ बेस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द pH स्केल। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस जिसका pH स्केल हमने मेजर कर रखा है। तो गैस्ट्रिक जूसेस के pH होते हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी पेट में जो गैस, पेट में जो जूसेस होती है, इट इज बिकॉज ऑफ विच एसिड, टेल मी, इट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड, ठीक है। तो उसकी pH रेंज क्या होती है, 1 से 3। एंड इसी तरीके से सारे सब्सटेंसेस के हमने pH रेंज लिख रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इंडिकेटर्स, कि भाई इंडिकेटर्स हमें बता रहा था कि कौन सा एसिड है, ठीक है। लिटमस भी बता रहा है कि एसिड कौन सा है, फिनोल्फ्थालीन भी बता रहा है कि बेस कौन सा है या एसिड कौन सा है, तो बोथ ऑफ देम वर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। बट क्या इसने ये बताया कुछ ऐसा कलर चेंज करके कि नहीं भाई ये वाला एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाला एसिड कम वीक है। pH स्केल से डेफिनेटली हम मेजर कर सकते हैं, बट ये pH स्केल से मेजर कैसे करेंगे, हमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस कैलकुलेशन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसका मतलब है कि हमने जैसे pH स्केल में हमने मेजर कर रखा था 0 से 14, उसी लाइन में हमने
क्या किया है कि 0 से 14 तक का बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर के एक ऐसा इंडिकेटर बनाया कि हर एक पीएच लेवल पर वो एक अलग कलर शो करेगा, और जैसे जैसे वो अलग कलर शो करेगा उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से एसिड का क्या स्ट्रेंथ है, या कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो मान लो कि अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डुबोया, वी आर गेटिंग अ रेड कलर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। इफ वी आर गेटिंग लाइक येलो कलर आ रहा है तो माइल्ड एसिड, राइट। और अगर हमें 7 मतलब अगर माने हमें ग्रीन कलर आ रहा है, हमारे पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर शो करा, मतलब वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहला क्या आ जाता है कि एसिड और बेसिस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है कि भाई पीएच ने हमें बता दिया कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें पीएच पता चल गया तो भाई अगर हमें पीएच पता चल गया कि अगर 3 है, बताओ ये क्या होगा सब्सटेंस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इफ द पीएच इज 3, राइट। अगेन हियर द पीएच इज 4.5 एंड दिस इज कॉफी। तो कॉफी क्या होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो अगेन इट इज माइल्डली एसिडिक, ठीक है। तो इसलिए आप बोलते हो कि मैडम कॉफी पीने के बाद में एसिडिटी हो रही है, क्यों? क्योंकि एसिड तो पी रहे हो, तो फिर एसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगी, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी और द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इज इट इज हेल्पिंग अस टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, राइट। अब पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पेट में हमारी गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, और ये गैस्ट्रिक जूसेस में प्राइमरी एक सब्सटेंस होता है, व्हाट इज इट, HCl। अब ये जो HCl कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, आपने मान लो खाना नहीं खाया तो अगर ये एसिडिक, तो ये क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास में ज़्यादा HCl गैसेस प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, मतलब HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, हमें एसिडिटी होती है, यानी पेट का पीएच और ज़्यादा लो हो रहा है। तो पेट का तो एक पीएच है जिसे हमें मेंटेन करना है, और अगर पीएच ज़्यादा कम हो गया यानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा और हमें एसिडिटी होगी या एसिड रिफ्लक्स के सिंड्रोम आएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू, हम एक एंटासिड लेते हैं जो हमारे पीएच को नॉर्मल पर लेकर आ जाता है, राइट ना। पीएच चेंज कैन ऑल्सो लीड टू टूथ डिके। अब ये टूथ डिके क्या होता है, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मुंह का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके पीएच को भी अफेक्ट करता है। हमारे जो भी बैक्टीरियाज अंदर में या जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे मुंह का पीएच बिगड़ जाता है। तो कभी कभी अगर ज़्यादा मुंह का पीएच बिगड़ जाएगा तो हमें क्या करना होता है कि अगर ज़्यादा पीएच बिगड़ गया तो इट कैन लीड टू टूथ डिके, एंड दैट इज द रीजन वाई जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट एक्ट एज अ बेसिक, इट गिव्स अ बेसिक एनवायरनमेंट सो दैट जो भी बैक्टीरिया के कारण हमारा जो जो नॉर्मल पीएच से जो पीएच बिगड़ गया या ज़्यादा एसिडिक हो गया उसको न्यूट्रलाइज करके हम नॉर्मल पीएच पर लेकर आ जाए, राइट। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, आपने देखा होगा कि एंट्स में कौन सी एसिड होती है, बीज में कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज मेथनोइक एसिड। तो ये अगर हमें जब काट देती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि एसिड इसने इंसर्ट किया, राइट, हमारे बॉडी में। तो अब क्या होगा कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट सम माइल्ड बेस, जिसके कारण क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा अगेन। तो माइल्ड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप में प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रलाइज हो जाती है हमारी स्किन, एंड फिर जो पीएच का जो लेवल होता है, स्किन का जो भी नॉर्मल पीएच लेवल होता है उसमें वो स्किन वापस आ जाती है। तो यहाँ पर भी एनिमल भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या सिक्रीट कर रहा है, एसिड सिक्रीट कर रहा है, राइट। और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में आसपास में बेसिस भी मिल जा रहे हैं। देन ये तो हमने पढ़ लिया सॉइल के पीएच। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रेंजिया मैक्रोफाइला। तो हाइड्रेंजिया क्या कर रहा है कि जैसे पीएच बिगड़ रही है सॉइल की, एसिडिक मीडियम में अलग कलर बता रहा, बेसिक मीडियम में हाइड्रेंजिया का अलग कलर हो रहा है। तो विथ चेंज इन पीएच ऑफ सॉइल द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट्स चेंज। तो सॉइल के पीएच को ठीक करने के लिए वी पुट डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट, टू रिस्टोर द पीएच। सिमिलरली एसिड रेन से भी पीएच का वाटर का पीएच बिगड़ जाता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ बेस को यूज करना होता है सो दैट कि न्यूट्रलाइज करते। एंड देन हमारी स्किन का भी पीएच बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्किन किस तरीके से काम कर रही है। एंड देन स्किन में डिफरेंट ऑर्गन्स है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स का पीएच अलग रहता है, उसे मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर्स अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्ट। वी आर डन विथ एसिड्स एंड बेसिस, कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, यानी एसिड्स और बेसिस ने जो रिएक्शन किया है, उसने जो प्रोड्यूस किया है छोटा सा बच्चा, दैट इज जो सॉल्ट है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। अब सॉल्ट क्या है भाई? सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो
obviously it's a chemical substance, chemistry पढ़ रहे हैं तो chemical substance ही होगा. So salt is a chemical substance that is formed as a result of what? Neutralization, we know. अब जो salt है वो एक आयनिक compound होता है. आयनिक compound मतलब कि जो सॉल्ट है जैसे जब हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, वो अपने आयंस में टूट जाएगा, रिस्पेक्टिव आयंस में, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. लाइक यहाँ पे NaCl है, CuSO4 it will break into copper ion. I'm sorry, this is not sodium, this should be copper ion. So it will be cuprous ion and then here hydroxide, I'm sorry, sulfate ion. ये थोड़ा गलत हो गया. तो this is copper ion and sulfate ion. Now salt, when they are in the solid state, they are held together by the strong electrostatic force. They are held together by strong electrostatic force of attraction. Salt in solid state, they won't conduct electricity, but in molten state, because they are going to form the respective ions, they will be able to conduct the electricity, right? Now we are going to take 4 to 5 salts, and we'll discuss the physical properties, chemical properties, preparation and the uses of that salt, and that's how we are going to end the chapter. So we're starting with sodium chloride. Sodium chloride is a neutral salt. Why? Because it has been made from a strong acid, that is HCl, and a strong base, that is NaOH, right? Now let's talk about the preparation कि बन कैसे रहा है sodium chloride. बेस लिया हमने, एसिड ली हमने, लैब मेथड क्या है, we get sodium chloride and water, right? This is the lab method, this is the way we prepare it in lab. अब बात करते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे हो रहा है. यू नो सी वाटर. सी वाटर क्या होता है, सी वाटर को जब हम इवेपोरेट करेंगे तो वी गेट कॉमन सॉल्ट, और जब कॉमन सॉल्ट में बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है तो वी कॉल इट रॉक सॉल्ट दैट अपीयर्स अ बिट ब्राउनिश इन कलर. ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट है इट शुड बी व्हाइट इन कलर. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड. सबसे पहला, रॉ मटेरियल इन द केमिकल इंडस्ट्री. हमें लगता है कि बस टेबल सॉल्ट के काम आता है, नहीं, दैट इज वन यूज. सबसे बड़ा यूज है कि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए अटैक्स एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. और ये चीज अभी हम आज के क्लास में ही देखने वाले कि हाउ इज NaCl गोइंग टू बी यूजफुल टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड कुकिंग फूड ऑफ कोर्स. प्रेजर्वेटिव, सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड प्रेजर्वेटिव. अचार बनाते हैं हम, ठीक है, तो उसमें यूज होता है. पिकल्स, क्योरिंग मीट एंड फिश. क्योरिंग का मतलब होता है अगेन इट्स अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, right, wherein we use salt, sugar and other chemicals. Manufacture of soap, yes, it's an important thing, and melting of ice. ठीक है. Now this is all about sodium chloride. Now let's talk about the sodium hydroxide. तो sodium hydroxide का एक पिक्चर देखते हैं कि भाई sodium hydroxide में क्या क्या चीज़ है. केमिकल फॉर्मूला NaOH, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा. रिमेंबर मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है कॉमन नेम, कॉस्टिक सोडा. वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा कॉमन नेम. चलो बताओ कमेंट सेक्शन में. अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है. चलो बताओ कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH. इसका कॉमन नेम क्या है. ठीक है. नाउ एक्शन ऑन लिटमस, इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. सॉल्युबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट. सॉल्युबिलिटी कैसा है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट्स हाईली अल्कलाइन. हाईली अल्कलाइन मतलब एल्कली है. एल्कली यानी क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस, राइट. नाउ प्रिपरेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज प्रिपेयर्ड बाय ब्राइन सोल्यूशन. व्हाट इज ब्राइन. ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अभी बताया था ना सोडियम क्लोराइड में कि सोडियम क्लोराइड इज गोइंग टू बी यूजफुल, इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल. ये देख लो आ गया ब्राइन हमारा. तो दिस ब्राइन सोल्यूशन इज व्हाट, इट्स नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड. अब ये क्या कर रहा है, द मेथड क्या होगा, क्लोरल्कली प्रोसेस. अब देखते क्या हो रहा है यहाँ पे. सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ वाटर, मतलब सोडियम क्लोराइड, आई एम सॉरी, sodium chloride, this is not hydroxide, sodium chloride. Sodium chloride is reacting with water. क्या मिल रहा है हमें, sodium hydroxide. It's sodium hydroxide. Let me write it here. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अब हमें एग्जामिनेशन में इसका इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा. ये क्वेश्चन आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे मिल रहा है, हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है और क्लोरीन कहाँ पे मिल रहा है. तो देखो बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है. क्लोरीन किससे शुरू होता है, C से. तो ये कैथोड में नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा एनोड में. मैं जब 10th में थी मैंने इसी तरीके से याद किया था. जब ये हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन किससे शुरू होता है, H से. तो ये किस में मिलेगा, ये कैथोड में मिलेगा, राइट. और ये जो NaOH है भाई साहब, ये कहाँ पे मिलेंगे, ये ब्राइन सोल्यूशन में ही मिलेंगे. ये कहाँ मिलेंगे हमें, ब्राइन सोल्यूशन में.
हमेशा याद रखना C फॉर क्लोरीन एंड C फॉर कैथोड दोनों सेम जगह नहीं रहेंगे। तो क्लोरीन अगर कैथोड में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगा, एनोड में। वही हाइड्रोजन H फॉर हाइड्रोजन, तो ये चला जाएगा कैथोड के पास में, और NaOH मिल रहा है हमें ब्राइन सोल्यूशन में। अब यहाँ पे देखो H2 मिला कैथोड में, क्लोरीन मिला एनोड में, NaOH कहाँ पे मिलेगा, ब्राइन सोल्यूशन में। अब देखते हैं NaOH। अब ये जो है, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी एनसीईआरटी से ली गई है और यहाँ से क्वेश्चन पक्के से पक्का आएगा। पूछेंगे कि यूजेस क्या है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया ब्राइन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें मिला कैथोड में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज होता है, फ्यूल में, मार्गरीन में, एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स देखे हैं आपने, देखे ही होंगे। अमोनिया पता ही है NH3 फर्टिलाइजर में यूज होता है। हाइड्रोजन ना, एनोड में हमें मिला क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूजेस है, सबसे प्यारा सा यूज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही पंजन सा स्मेल आता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में सारे में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज करते हैं, वो क्लोरीन का स्मेल आते रहता है। पीवीसी में, डिसइंफेक्टेंट में, CFC पेस्टिसाइड्स में, एंड देन क्लोरीन इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन। ना अब NaOH की बात करते हैं। तो NaOH का यूजेस क्या क्या है, इट इज यूज फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स and creation of paper. It is used in paper making industries and artificial fiber. अब ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, हमें हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला, NaOH मिला। अब इनका भी फर्दर यूजेस, अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बनाएंगे, HCl गैस। हमें क्या मिल रहा है, HCl। अब ये HCl के क्या यूजेस है, HCl is used for cleaning steel, ammonium chloride and medicines and cosmetics. These are the areas where HCl is used. Then let's talk about bleach. Cl2 और NaOH मिलकर के ब्लीच बनाएगा, दैट विल हेल्प अस टू डू द ब्लीचिंग ऑफ द फैब्रिक। ब्लीचिंग का मतलब है कि कलर उसको निकाल देना, उसका कलर चला जाता है फैब्रिक का। तो अगर आपको रीकलर करना है कोई फैब्रिक को, तो पहले आप ब्लीच करते हो, उसके बाद आप उसमें दूसरा कलर डालते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग। इतना पानी बाहर से एब्जॉर्ब करेगा कि जब तक इसको ये खुद ही सॉल्युबल ना हो जाए पानी में। स्ट्रांगली अल्कलाइन है ना, इसको तो बहुत ही मजा आता है पानी के साथ में। तो मॉइस्चर भी कहीं से भी हो तो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीलिक्विसेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के तरीके का दिखता है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूशन इज बिटर इन टेस्ट। ऑफ कोर्स इट्स अ बेस, तो बिटर इन टेस्ट होगा। कोरोसिव एंड सोपी टू टच। अब अल्कोहल में इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब पूरी तरीके से जो नहीं घुल पाता है। नाउ we are done with the sodium hydroxide. Let's talk about the other compound, that is bleaching powder. Bleaching powder, what is it? Calcium oxychloride. What is the formula? CaOCl2. अभी पढ़ने के लिए ये है, जब आप हायर ग्रेड में जाओगे तो इट इज CaOCl Cl। ठीक है, जब आप और भी सारे बॉन्ड्स पढ़ोगे तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इसको मत पढ़ो, अभी CaOCl2 याद कर लो। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है, क्वेश्चन आएंगे। केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। तो बच्चों कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इट्स सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नाउ कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, क्लोरीन लिया, बताया था ना क्लोरीन यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। दिस इज हाउ वी गेट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। White powder, strong smell of chlorine, because chlorine है इसके अंदर, तो it's a very strong smell of chlorine. It's soluble in cold water and it reacts with dilute acid to produce the chlorine. अब इसको हमने acid के साथ में react करवा दिया तो it was going to produce the salt and then chlorine will also be liberated. तो जब हम bleaching powder को कहीं पर भी use कर रहे होते हैं तो जो smell strong सी आती है, it is because of the evolution of Cl2 gas, that is chlorine gas. ठीक है, now क्या क्या uses है, bleaching wood, clothes, linens, और फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट है टू मेक वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, एंड देन इट मेक्स द वुल अनश्रिंकेबल। तो वुलन क्लोथ को आप जब बहुत बार धोते हो तो क्या होता है कि वो श्रिंक कर जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर आपने उसमें डाला है एंड देन यू ट्रीट इट विद ब्लीचिंग पाउडर तो इट बिकम्स अनश्रिंकेबल। देन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोरोफॉर्म। नाउ वी आर डन विथ दूसरा सॉल्ट डाउन, सॉरी तीसरा सॉल्ट डाउन. व्हाट वी हैव कवर्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर. नाउ इट्स हाई टाइम फॉर सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O. क्वेश्चन आएगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है, इसको दिमाग में रखो. विल टॉक अबाउट वाटर ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है, अब
कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा. लिटमस में क्या है, रेड लिटमस ब्लू, अगेन स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. नाउ सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ब्राइन, सोडियम क्लोराइड, बोला था ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया एंड लाइमस्टोन, 3 चीजें हैं और 3 स्टेप में रिएक्शन होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. अब ये जो वॉशिंग सोडा है इसका प्रिपरेशन होता है सॉल्वेज प्रोसेस से. दिस सॉल्वेज प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको और क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस. एग्जामिनेशन में अगर आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि भाई अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या है या सॉल्वेज प्रोसेस क्या है, इसको आंसर करके आना. अब बताते हैं क्या करना है इसे आपको. ठीक है, सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल्स लिख लिया, क्या क्या चाहिए, ब्राइन चाहिए हमें, दूसरा क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए हमें. ठीक है, अब देखते हैं क्या है प्रोसेस. सबसे पहला प्रोसेस है क्या क्या हमने कॉमन सॉल्ट लिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ठीक है, अमोनिया जो हमने लिया था, इन तीनों को रिएक्ट करवाया, इन चारों को रिएक्ट करवाया, हमें मिला अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एंड वी हैव गॉट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, ये है स्टेप 1. इसके साथ में एक और रिएक्शन हो रहा है वेयर इन वी आर हीटिंग calcium carbonate so that it releases the CO2 gas. ठीक है, decomposition of calcium carbonate is happening, we are getting CaO, that is quicklime. एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज क्विकलाइम. क्विकलाइम इज नथिंग बट CaO. प्लीज कंफ्यूज मत होना CaO और CaOH2 में, वन इज क्विकलाइम एंड द अदर वन इज स्लिकलाइम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू ड्राई द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यहाँ पे हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अपन दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है वो देखना है. तो दिस रिएक्शन बिकम्स VVI फॉर यू, और ये तो पूरा प्रोसेस ही VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नॉन नेगोशिएबल, यू हैव टू डू इट. फिर उसके बाद आ रहा हमारे पास ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, स्टेप 2 में हम उसको सुखाएंगे. तो क्या करें, इज हीटेड स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट. इसको हीट किया हमने, we get anhydrous sodium carbonate. अभी भी ये जो सोडियम कार्बोनेट है इट इज सोडा ऐश. सोडियम कार्बोनेट में हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन थे. तो क्या करा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको वापस से रिक्रिस्टलाइज करेंगे सो दैट जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए, और जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जिसमें इसके फॉर्मूला को चाहिए डेकाहाइड्रेट, तो वो बन जाए. तो इसे हम वाटर से ट्रीट करेंगे, वी गेट वॉशिंग सोडा, एक्वियस वॉशिंग सोडा. फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, वी गेट Na2CO3.10H2O. प्लीज रिमेंबर, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में .10H2O आना ही है, लिखना ही है. राइट, नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द प्रॉपर्टीज. White crystalline solid, the decahydrate form on standing in air will lose water and crumbles to powder. ठीक है, then its monohydrate will change and does not decompose on further, even heating to redness. फिर उसके बाद it is soluble in water with the evolution of considerable amount of heat and show alkaline nature due to hydrolysis. ठीक है, alkaline nature show करेगा क्योंकि hydrolysis हो जाएगा इसका. Now let's talk about the uses. Uses बहुत सारे. ग्लास, Na2CO3, ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद कर लो ग्लास से, ग्लास के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सोडियम सिलिकेट, पेपर, बोरैक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सोप, कॉस्टिक सोडा, लॉन्ड्री में यूज होती है, सॉफ्टनिंग वाटर में यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज एज अ लैब रिएजेंट. इन दोनों के मिक्सचर को, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूजन मिक्सचर. एंड देन फॉर जब आप हायर ग्रेड में जाओगे तो जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें इट इज यूज्ड वेरी मच. राइट, तो आप इसको कैसे कर सकते हो याद कि सबसे पहले तो ग्लास, बोरैक्स, सोप इंडस्ट्री, तीसरा क्या रहा, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर लॉन्ड्री में, एंड देन ऑल्सो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसके यूजेस है. एंड यू जस्ट राइट इट टिल हियर, लैब रिएजेंट. किस तरीके से लैब में काम कर रहा है यू डोंट नीड टू मेंशन, बट हाँ लैब रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट. We are done with the sodium carbonate. अब आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसके पास अब हाइड्रोजन है, तो वो क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट. तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे, बोथ आर इक्वली करेक्ट. कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे. विल डिस्कस दैट. व्हाट इज द एक्शन ऑन लिटमस, रेड लिटमस ब्लू, एंड देन स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. अब देखते हैं इसकी लैब मेथड क्या है प्रिपेयर करने का. लैब मेथड सिंपल सा है, वी हैव सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया 1 मॉलिक्यूल, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया 1 मॉलिक्यूल, एंड H2O ले लिया 1 मॉलिक्यूल. राइट, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ
HCO3 we will get. अब हम कमर्शियल मेथड देखेंगे. तो पिछले कमर्शियल मेथड में जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग दी सॉल्वेज प्रोसेस, तो सॉल्वेज प्रोसेस में क्या देखा हमने देखा कि सॉल्वेज प्रोसेस में तो स्टेप 1 क्या कर रहे थे, ब्राइन सोल्यूशन विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. व्हाट वी वर गेटिंग, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो यहीं से इस प्रोसेस को इफ वी स्टॉप इट वी गेट दी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, राइट. Now let's talk about the properties. Again, it's a white crystalline solid sparingly soluble in water, alkaline in nature, shows alkaline nature due to hydrolysis. वो टूट जाता है solution में. And aqueous solution gives yellow color with methyl orange, but no color will with phenolphthalein because it's a weak base. अगर एक strong base होगा तो वो phenolphthalein में color change बताएगा. ठीक है, phenolphthalein turns pink in basic medium. तो ये phenolphthalein को पिंक में नहीं चेंज कर पा रहा है, बट यस मिथाइल ऑरेंज में इट इज पुटिंग एन इफेक्ट. नाउ ऑन हीटिंग इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी विल गेट Na2CO3. तो अब देखो ये रिएक्शन वाइसे वर्सा हो रही है. पहले हमने सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिया टू फॉर्म व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब इसके प्रॉपर्टीज में व्हाट आर वी डिस्कसिंग कि द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इसको आप हीट करोगे, when you are heating it, we are getting what? The reactants, that is sodium carbonate, water and carbon dioxide. Now, let's quickly understand the difference between baking soda and baking powder. So, baking soda is nothing but sodium bicarbonate, NaHCO3. But जब NaHCO3 के साथ में we have the tartaric acid, जब हमने tartaric acid add कर दिया, तो we get a baking powder. This is the chemical difference between both of them, right? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमने जो केक बनाया था, हमारी मॉम ने जो भी केक बनाया था, शी एडेड दिस बेकिंग सोडा एंड द केक वाज टेस्टिंग बिटर. व्हाई इज इट टेस्टिंग बिटर? क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है इट इज वीकली बेसिक, और अगर ये वीकली बेसिक है, व्हाट इज द प्राइम प्रॉपर्टी ऑफ बेस? बेसेस टेस्ट बिटर, राइट? तो दैट इज द रीजन वाई आपका केक जो भी है वो बिटर टेस्ट कर रहा है. तो आपको क्या करना है कि वो जो बेसिक प्रॉपर्टी, वो जो बिटरनेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू हैव एडेड द टार्टरिक एसिड एंड हेंस इट बिकेम अ बेकिंग पाउडर, राइट? नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यूजेस देख लेते हैं. इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटासिड. इट इज यूज्ड टू मेक द एफरवेसेंट ड्रिंक्स, जैसे एफरवेसेंट जो इनो की गोली ले लो या फिर कोक ले लो, तो इट इज देयर. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर it is used in production of carbonate क्योंकि it has HCO3. what is hydrogen carbonate? it is HCO3. this ion is there. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्का से पक्का रिलीज करेगा ये. उसके बाद it is also used in making soda acid fire extinguisher. this is important guys. it will ask the examination में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि what are the acid and base का combination in soda acid fire extinguisher. always remember what is the base? NaHCO3. what is the acid? we have H2SO4. this is the base and this is the acid. ठीक है, these are the two things that you have to remember. now water of crystallization. when I was teaching about sodium carbonate, ठीक है, तो I told you that it has 10 molecules of hydration. मतलब क्या कि ये अपना, चलो एक एग्जाम्पल लेकर करके समझते हैं. ये हमारा कॉपर सल्फेट है. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O. ठीक है, इसे हमने हीट किया. when we heated it we got what? a white colored substance. ये ब्लू में था, अब ये white बन गया. क्यों? क्योंकि it lost all the water of hydration. जो 5 molecules of water थे वो चले गए. that got vaporized. that is the reason why it became white in color. so the color which was being provided to CuSO4 was from the water. ठीक है, तो वो जैसे ही चला गया ये व्हाइट कलर में हो गया, राइट? तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि water of crystallization resembles to the fixed number of water molecule that is present in one formula unit of salt. Salt has formula unit, ठीक है? This is NaCl. This is nothing but a formula unit. Now one salt has a formula unit. अब इसमें कितने water present है? Right, that is nothing but the water of crystallization. For CuSO4 it is 5 molecules of water. For Na2SO4 it is how many? 10, right? And similarly you'll see here there is a list of compounds. I've mentioned their name, I've also mentioned their common name, and this denotes the number of
water molecule that is present here. Like if I talk about calcium sulfate hemihydrate, that is nothing but plaster of Paris. It has half molecule of hydration. While if I talk about gypsum, that is calcium sulfate, it has 2 molecules of water of hydration. ठीक है, gypsum, plaster of Paris. तो इसका आप screenshot ले लो. This is also very important. Now we are done with the 5-6 salts. Now the 6th salt is plaster of Paris. This is a very cute सा salt. This plaster of Paris का chemical name है calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate, right? तो now you can write it in 2 ways. This question is going to come. अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से दिखा देगा. It will ask कि भाई what is the correct formula of Ca calcium sulfate hemihydrate और plaster of Paris. क्या है? This is the correct formula and this is also the correct formula. तो यहाँ पे 2 molecule is sharing 1 molecule of water and here 1 molecule is sharing half molecule of water. Basically half molecule of water is present. तो ये अगर हमने इसको और ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो हम लिख देंगे 2CaSO4 dot H2O, right? यानी 1 molecule of water is being shared with 2 CaSO4, correct? यानी एक को कितना मिल रहा है? Half. Now, common name plaster of Paris. Action on litmus, it's a neutral salt and solubility, it is insoluble in water. This is a very important compound. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा. व्हेन यू हीट जिप्सम यू गेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. दिस इज अ फॉर्मूला, राइट? 2CaSO4 dot H2O हमने लिख लिखा है. नाउ जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर को ऐड करते हैं तो द टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड इन अ प्रॉपर वे. Also we need to add a appropriate amount of water and then we have to make a proper thing of it. Like plaster of Paris की कितनी सारी मूर्तियाँ हम देखते हैं, right? तो हमें water एकदम appropriate amount में डालना, वरना it will set as a hard mass, right? And what is the hard mass? This is the hard mass, right? Now another thing is let's talk about the properties. It is white odorless powder and at ordinary room temperature it will absorb water and large amount of heat will be liberated. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ होता है, तो दिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज योर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप कितना वाटर डालोगे कि वो जिप्सम बन जाए. दिस इज व्हाट? जिप्सम. How many molecules of water you are going to add so that it becomes gypsum? It is 3/2. आधा तो इसके पास में. How many you will add more? 3/2, right? Now, let's talk about the uses. This is very important and very interesting thing. तो uses क्या होगा कि laboratory में अगर हमें air gaps को seal करने plaster of Paris, nothing is better than plaster of Paris. Then ornamental अगर हमें बनाना, कुछ ornaments बनाने हैं, idols बनाने हैं, तो we use POPs. Then if you want to do the fracture of the bones के fracture में again it's POP. Also for fireproofing material, again it does not burn, so it's a very good use. It has a very good use case in fireproofing material. So with that we are at the end of today's session. I hope you guys enjoyed. मैंने जो भी questions आपसे पूछे थे क्लास के दौरान, please reply in the comment section. And with that, it's a big thank you for all of you for being with me till now. And we'll meet in the next class wherein we are going to discuss the chemical reactions and equations. Till then guys, stay tuned.